جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جوں ہی ہاجرہ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شیر خوار بچے کی طرف پلٹ گئی۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے۔ پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے تو درکنار ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا نہ خوراک۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عورت کتنی بھی باحوصلہ ہو اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکی۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر اور بے چین ہوئی اور بلندی کی طرف دوڑی۔ اس طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی۔ وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروہ پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی۔ درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی۔ اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئی۔ اللہ اکبر! ایک تو عورت ذات کمزور، پھر بھوک پیاس سے نڈھال، اس پر کس قدر سعی اور کوشش میں مصروف، وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔ بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے مسلمان عازمین حج صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی، زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی خوب پیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر باد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا۔ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے۔
जब वहां खुराक खत्म हो जाती तो आगे सफर शुरू कर देते। चूंकि वो बहुत बड़े ताजिर थे, इस बिना पर उन रास्तों से खूब वाकिफ थे। उन्हें चश्मों का खूब इल्म था। मुल्क के शाम की तरफ भी उनकी आमदो रफ्त थी। ये कबीला बनु जुरहम मक्का के करीब पहुंचा तो फिजा में परिंदों को मंडलाते पाया। कहने लगे, इन परिंदों की मौजूदगी में जरूर कोई राज है। अब उन्होंने अपने कुछ आदमी उस तरफ भेजे। ये लोग जल्द ही चश्मे तक पहुंच गए। उन्होंने वहां एक औरत और उसके बच्चे को पाया। फिर वो लोग उनके पास आए, वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। सैयदा हाजरा ने फरमाया, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उजरत अदा करना होगी। उनके लिए यह सस्ता सौदा था। उनके पूरे कबीले को सामान्य जिंदगी मिल रहा था, जबकि सिर्फ एक औरत और उसके बेटे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो रही थी। उन्होंने फौरन हामी भर ली और वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। इस तरह ये लोग सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की मईशत का जरिया बन गए और इस तरह सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहुम में परवरिश पाते रहे। उन्होंने उन लोगों से अरबी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबी दान बन गए। फसाहत और बलागत से अरबी में बातचीत करने लगे। फिर उनकी इस कबीले में शादी हो गई। उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ। इन्हीं में से सरवरे कायनात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। बनु जुरहुम की आमद और आबादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी दो कमजोर इंसानों को इस वीरान जगह छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तामीर हो चुकी थी? दुरुस्त बात यह है कि उस वक्त खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी? इस बारे में दो तरह की रिवायात हैं। बाज में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले शीस अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो गर्दिश अय्याम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था, जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है। अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहुम के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। हुआ यूं कि एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए। नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्त जिगर को अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं। साथ ही आंख खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाए किराम के ख्वाब हकीकत होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम और ताज्जुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया, और इब्राहिम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो हमने एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब तू बता, तेरी क्या राय है? यहाँ सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा क्यों लिया,
वो चाहते तो इस्माइल को सोते में ज़बह कर देते। इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते। वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया? जी हाँ, ये मसला याद रखने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को अजर व सवाब में शामिल करने की कोशिश करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को सवाब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। ये न चाहा कि मैं अकेला ही अजर लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैरखाही को पेश नजर रखा। वालिदैन के लिए आपके इस अंदाज में नसीहत मौजूद है, ये कि औलाद को सवाब के मौके फराहम करें, उनकी सही तरबियत करें। अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराएं, ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े। जब किसी दीनी मजलिस में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ लेकर जाएं। बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं, औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं। खुद दीन सीखते हैं, औलाद को दीन नहीं सिखाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से राय ली। सुभान अल्लाह। उन्होंने जवाब में फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ, बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया, इसलिए कि वो जानते थे अंबिया का ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है, अल्लाह की वही होता है। इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की। ये तक न पूछा मुझे क्यों ज़बह कर रहे हैं, या मेरा क्या जुर्म है, या आपके पास कौन सा सरीह हुक्म आया है। उन्होंने ऐसी कोई बात न कही। अल्लाह की फरमाबरदारी इसी को कहते हैं। चुनाचे अपने बाप से कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उलमाए किराम फरमाते हैं, इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है, और इसमें जबरदस्त तवक्कुल मौजूद है। ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा मुसलमानों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये न कहे मैं सफर करूंगा, मैं फुला काम करूंगा, मैं फुला काम के करने की ताकत रखता हूँ, बल्कि यूं कहे अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो फुला काम करूंगा। अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है। हर चीज का ताल्लुक अल्लाह से कायम करे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं न कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से सजा कर रखो और हमेशा अपने मुआमलात को अल्लाह की तरफ लौटाओ। बहरहाल बाप बेटा दोनों ही मुसम्मम इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मुहतरम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, जब आप मुझे ज़बह करने लगें तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा, ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। चेहरा देखकर आप पर शफकत पिदरी गालिब न आ जाए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। जब दोनों मुती हो गए और इब्राहीम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया, अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहीम को नहीं जलाया था। इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली। अब इब्राहीम जोर लगा रहे हैं। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी चलाइए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया है, जब वो दोनों मुती हो गए और इब्राहीम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया। इस मुती होने से मुराद अल्लाह के हुक्म को नाफिज करना है। अब जाहिर है मुती तो वो पहले भी थे, लेकिन यहाँ अस्लमा यानी मुती होने से मुराद कामिल इस्लाम है। निहायत वाज़ेह और हकीकी इस्लाम मुराद है, इसलिए कि कामिल इस्लाम वही होता है जिसमें बगैर किसी तरद्दुद और तवक्कुफ के अल्लाह के अम्र और नही की तस्दीक की जाए। ये था हकीकी इस्लाम। हाँ, तो छुरी चलती रही, गला न कटा, इसलिए कि इम्तिहान और आजमाइश की तकमील हो चुकी थी।
ये बात साबित हो चुकी थी कि अल्लाह का हुक्म नाफिज करने में दोनों पूरी तरह कोशां हैं। अल्लाह ताला भी फरमाबरदारी ही का सिला अता फरमाते हैं। चुनाचे आवाज आई, हमने उसे पुकारा, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी।